নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ কলাক্ষেত্ৰত চাহে শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ এই আঁচনিৰ অধীনত কভিড নিথৰুৱা হোৱা পৰিয়ালৰ 100 গৰাকী নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীক সাহায্যৰ চেক প্ৰদান কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো কলাক্ষেত্ৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ऐसे 876 जो विधवा महिला है या स्वामी का बिना जो जिसको अभी जीना पड़ेगा ऐसा मेरा माँ और बहन के लिए हम लोग 2.5 लाख रुपया का एक राशि हम लोग उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं और वो काम हो गया है और आगे भी जो भी सूची हमारा पास आते रहेगा हम 2.5 लाख रुपया देते जाऊंगा। फिर फाइनली हमारा पास जो लोग हमको छोड़ के चला गया अनाथ वाला को हमने जो अनाथ बच्चा है उनके लिए एक स्कीम किया, जिसका स्वामी का निधन हुआ उनके लिए एक स्कीम किया और बाकी जो परिवार रह गया उनको भी हम 1 लाख रुपया देने का निर्णय किया और वो कार्यसूची का आज शुरुआत होगा। आज हमने 100 ऐसा परिवार को व्यक्ति को निमंत्रण किया हूं जो हम 1 लाख रुपया उनको देने का आज हमारा प्रस्तुति है और 15 अगस्त में जब हमारा तमाम मंत्री फ्लैग होस्ट करने जाएगा वो दिन हम सब ऐसा व्यक्तियों को हम ये 1 लाख रुपया का अनुदान वही जिला में जाके देके आएगा। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा कार्यसूची है। फिर भी जो लोग चला गया है उनको हम कभी भी फैमिली को कम्पेनसेट नहीं कर सकता हूं। मैं समग्र असमबासी राइजर होई आटाइकेटा परियालक पुनर एबार मैं मोर समग्र असमबासी राइजर होई তেওঁলোকৰ ওচৰত মই থিয় হৈছো আৰু পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰতিজন বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি कामना करिसु। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। गृह मंत्री जी को दिल्ली लौट के जाना है, अब हमारा बीच में आया और हमको आशीर्वाद किया और आसाम के लिए आपका मन में जो प्यार है आप और प्रधानमंत्री जी का जो आसाम के लिए सपना है ये सपना साकार करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करूंगा। नया नया सरकार बना है, तमाम मंत्री हमारा विधायकगण जितना हो सकता है परिश्रम कर रहा है। जनता की बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, ये जनता का आशीर्वाद आप लोग का आशीर्वाद इसी को ताकत मानते हुए आगे हम लोग आसाम के लिए काम करते जाऊंगा और आसाम को देश का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बनाने का हमारा जो सपना है ये साकार करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री महोदयলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। Well, ladies and gentlemen, we are here today to witness two historic initiatives taken by the Assam government for the well-being of its people and also to take the health sector a notch higher. With the help of the central government, the state government has made a remarkable development during this pandemic for the health infrastructure and has left no stone unturned to give its people the best of medical facilities. इसी यात्रा को गतिमान बनाते हुए आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जो है तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। इसी के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। আসলে কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মা কামাখ্যাৰ আশীষ লোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
বিদায়ী সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দায়িত্ব চমজি লোৱা ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ সন্মুখত পৰ্বত সম প্ৰত্যাহ্বান 4 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন 24ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে দল এৰি বিজেপিলৈ যাবলৈ অপেক্ষাত থকা নেতাক ধৰি ৰাখিলেহে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব ভূপেন কুমাৰ বৰা 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে তাৰ আগে আগে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ বহু নেতাৰ দল দিয়া দলীয় কণ্টল লবি ৰাজনীতি আৰু তৃণমূলত ভেটি থৰক বৰক হোৱাৰ সংকটকালত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দায়িত্বত ভূপেন কুমাৰ বৰা বিদায়ী সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বাসগৃহলৈ গৈ চৰণ চুই গুৰুদায়িত্ব চমজি ল'লে একালৰ বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে সন্মুখত 101টা প্ৰত্যাহ্বান 4 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন 24ত লোকসভা নিৰ্বাচন সুশান্ত বৰগোহাঁই শিৱামণি বৰাকে ধৰি দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈ থকা বিধায়কক দলত ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা লগতে চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা ভূপেন কুমাৰ বৰাই সাহসেৰে এই সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী বিদায়ী সভাপতি ৰিপুণ বৰা বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমি পাৰ হ'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আমাৰ দলটো আছে গতিকে এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক অতিক্ৰম কৰি আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ পিনতা মই এজন কংগ্ৰেছৰ সৈনিক হিচাপে মই মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছটো মোৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল নহয় মোৰ কাৰণে মোৰ ৱে অফ লাইফ জীৱন সংস্কৃতি নিজৰ কাৰ্যকালত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খোৱা ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে দলত নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আহ্বান জনালে ভূপেন বৰা আমাৰ গোটেই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেই গাঁৱে ভূঞে থকা সকলোবিলাক কৰ্মী মনোবলটো ভাঙি গৈছে প্ৰথম কথা আমি মনোবলটো ঘূৰাই আনিব লাগিব আৰু দলটো পুনৰ সুসংগঠিত কৰিব লাগিব তৃণমূলৰ পৰা ধৰি একেবাৰে তৃণমূলৰ পৰা ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈকে আমি কিছুমান নতুন মানুহক আনিব লাগিব আমাৰ নতুন মানুহক আনি উদ্যমী মানুহক আনি যুৱ শক্তিক আনি আমি এটা নতুন শেপ দিব লাগিব পাৰ্টি এইখিনি কাম যদি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বাকী প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছে আমি বাকীখিনিতো আছেই এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰিপুণ বৰাই নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিবনে ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত দুবাৰ আৰু তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এবাৰ পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাৰ কৰ্মপন্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত যি যাত্ৰাত ভূপেন বৰাই কাষত পাব প্ৰথমবাৰলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দায়িত্ব দিয়া ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ দৰে 3গৰাকী নতুন কাৰ্যকৰী সভাপতি বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দিহা মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে অসমৰ বান সমস্যা চিৰদিনৰ কাৰণে নিৰ্মূলৰ দিহা অমিত শাহৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত হন বান প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি নহয় লুইতৰ পানী জলাশয়ত পেলাই বান নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অতিৰিক্ত পানী জলাশয়বোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি বান নিয়ন্ত্ৰণৰ নিৰ্দেশ দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এটা নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যি সময়ত বানপানী হয় সেই সময়ত অতিৰিক্ত পানীখিনি যিবিলাক আমাৰ ৱেটলেণ্ড আছে তালৈকে বোৱাই নিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা এটা তেওঁলোকে স্যাটেলাইট দি তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা এটা চলি আছে ধেমাজিত তেওঁলোকে কিছু এৰিয়াত এটা পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিব খুজিছে শনিবাৰে শিলঙৰ এনিসেক সোসাইটিৰ এখন বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এই প্ৰকল্পত মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ পোষকতা কৰে তেওঁ কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কৃত্ৰিম হ্ৰদত পেলালে 1/3 বানপানী হ্ৰাস হ'ব কৃত্ৰিম হ্ৰদবোৰ পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ধন এই কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিলে অমিত শাহে अगर ब्रह्मपुत्र का सारा पानी बड़े बड़े 21 तालाबों में डाल देते हैं तो 1/3 बाढ़ हो जाएगी अगर बाढ़ 1/3 होती है तो ढेर सारी जानहानि से भी बच जाएंगे खर्च भी बच जाएगा और पूछ रहे थे फंड कहां से आएगा
भाई बाढ़ में जो खर्च करते हो वो वहां एडवांस में डाल दो तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेमंत विश्व शर्मा जी यहां बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपके बाढ़ में 5 साल का खर्च का टोटल कर दीजिए। अगर इतना आप तालाब बनाने में डाल देंगे तो बाढ़ आएगी ही नहीं। और वहां पर बड़ी बड़ी झीलें बनेगी जो पर्यटन के भी काम में आएगी, इरिगेशन की काम में आएगी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी काम में आएगी। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ অভিলাষী প্ৰকল্প কাগজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ পৰিকল্পনা বান নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশত কিমান বাস্তৱসন্মত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো কলাক্ষেত্ৰলৈ। কলাক্ষেত্ৰত শ্বাহে শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ। कार्यक्रम में उपस्थित आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, असम लोकसभा के और विधानसभा के स्पीकर और मेरे मित्र श्री विश्वजीत देमारी जी, असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और असम के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान केशव महंत जी, और जिनके कारण ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता संभव हो पाया, ऐसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, मुख्य सचिव असम, स्वास्थ्य सचिव असम, मंत्री परिषद के असम के सभी सदस्यगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम के अंदर तुमुलपुर से जुड़े हुए बोडोलैंड के निवासी, तुमुलपुर के निवासी प्यारे भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज असम के चुनाव के बाद पहली बार असम में आया हूं। असम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है, मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट था उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना चाहिए। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुआ। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा, आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए।
विकास के रास्ते पर आप आसाम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को, जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करी। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान जो है, वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना। और हेमंत विश्व शर्मा, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर आसाम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका आसाम की टीम को साथ में लेकर, इस आसाम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो, इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति सफल मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा मुख्यमंत्री न बने, दूसरा बने। और बड़े हृदय से सर्बानंद जी ने हेमंत विश्व शर्मा की पीठ थपथपाई और वो आज भारत की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो असम को तो 2 और से फायदा हुआ है भाई। हेमंत जी मुख्यमंत्री बन गए और सर्बानंद जी कैबिनेट मंत्री बनकर आसाम की चिंता कर रहे हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो आजादी के बाद आप सूची खंगाल कर देख लीजिए, कभी नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्री भारत की कैबिनेट में नहीं रहे हैं। वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जनता की भागीदारी देश के विकास में बढ़े और देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी बढ़े। ये दोनों जब समाप्त होगा तभी नॉर्थ ईस्ट भारत को भी विकास का पूरक बन जाएगा। आजादी के पहले जीडीपी जो था वो आज हमारा आना चाहिए। मित्रों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विकास की यात्रा मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी अपने आप में अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो केवल 6.5 साल के अंदर 35 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करे हैं, 35 बार।
और 6.5 साल में एक भी पखवाड़ा ऐसा नहीं गया कि 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आया हो। और इसी के कारण छोटे छोटे राज्यों में भी सभी सुविधाएं आज पूरी हो रही, सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाना का काम हुआ है। मित्रों, आज यहां आने से पहले मैं कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम का रेडिएशन थेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। मशीन वहीं पड़े थे, वहां विशेषज्ञ डॉक्टर थे, वो मुझे समझा रहे थे कि देश में 5 ही मशीन है इस प्रकार के, आज 6ठा मशीन वहां पर आज आसाम की जनता को उपलब्ध हो गया। आप कल्पना करिए, इतने बड़े देश में 5 ही मशीन है, इसमें से 6ठा मशीन आज आसाम की जनता को मिल रहा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा, मगर कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, 2018 में यहां आया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक बहुत बड़े कैंसर के अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों से यहां कराया गया था। वो अस्पताल तो बन रहा है, मैं देख कर आया अभी रास्ते में। हेमंत जी ने कहा कि दिसंबर आते आते मोदी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराएंगे। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कई सारे लेवल 2 के अस्पताल और लेवल 3 के अस्पताल बनने वाले हैं। और इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के अंदर एक लेवल 3 का अस्पताल बनेगा, जो ऑपरेशन के बाद की ट्रीटमेंट है अपने राज्य के अंदर भी राज्य के अंदर ही कर पाएंगे। उनको आसाम में, गुवाहाटी में आने की भी जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का असम सरकार का और हेमंत जी का पास्ट रिकॉर्ड है, इस समय पर पूरा होगा और असम के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर के खिलाफ लड़ने का एक सेंटर भी बनेगा। यहाँ रिसर्च भी होगा और रिसर्च के बाद यहाँ से रिसर्च किए हुए पेपर हमारे असम के बच्चों के दुनिया भर में पढ़े भी जाएंगे। मित्रों, आज तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास अभी हमने यहाँ किया। तुमुलपुर में भी बहुत सारे लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर मैं आसाम की जनता को और तुमुलपुर की जनता को, बोडोलैंड की जनता को बताना चाहता हूं, एक सीधे सादा मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये बोडो शांति समझौते का महत्वपूर्ण अंग है और ये डिमांड बोडोलैंड की डिमांड करने वाले ने नहीं की थी, ये हमने हमारी ओर से जोड़ा हुआ काम है कि भाई आप राजनीतिक डिमांड करते हो, सांस्कृतिक डिमांड करते हो, भाषा की डिमांड करते हो, परिषद की डिमांड करते हो, मगर साथ में साथ जनता का भला हो ऐसा तो कुछ मांगिए। और मैं कहता हूं कि मैं गृह मंत्री था उस वक्त, बोडोलैंड का जब समझौता करे, मेरे अधिकारी मुझे आगाह करे, साहब ये कब समाप्त होगा। मैंने कहा था कि हम 2024 में फिर से आशीर्वाद मांगने जाएंगे, उसको पहले बोडोलैंड के पूरे समझौते को समाप्त कर आसाम और बोडोलैंड की जनता के सामने जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना भी देर नहीं लेगा, आजादी के जब 75 साल पूरे होंगे उसके पहले हम बोडोलैंड को किए हुए सारे वादे समाप्त कर बोडोलैंड की जनता का आशीर्वाद लेंगे। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है। कई सारे ऐसे समझौते बक्सों में पड़े हैं
जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है और कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड का समझौता हुआ, 90% बोडोलैंड के समझौते की सारी धाराएं हमने समाप्त कर दी, इनकी अनुपालना हो गई। ब्रू समझौता हुआ, ब्रू समझौते के तहत 14 में से 9 जगह पे जमीन देने का काम समाप्त हो गया है और वहां पर भी 2022 के पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा, 4500 रुपये पेंशन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा कि वो भारत के नागरिक है। एक समझौता भी हम पूरा करें। ढेर सारे समझौतों के 2100 से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार डाल दिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अभी कार्बी का समझौता भी समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है दस्तखत करने की। त्रिपुरा के 2 हथियारी गुटों ने भी समझौता करके अपने हथियार डाल दिए हैं। ढेर सारे ऐसे इरिटेटिंग चीजें थी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति नहीं स्थापित होने देती थी। इसको मोदी सरकार ने धीरे धीरे कर एक के बाद एक समाप्त करने का काम किया है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बहुत नजदीक से प्रक्रिया को देख रहा हूं और मुझे भरोसा है न केवल आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट 2024 के पहले से 2024 के पहले आंदोलन और आतंकवाद के रास्ते से निकलकर विकास के रास्ते पर जुड़ जाएगा और बहुत आगे जाएगा। आज मणिपुर में हमारी सरकार है, 4.5 साल हो गए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। पहले महीने में 10 दिन बंद हो जाता था एवरेज, आज एक भी बार बंद नहीं हुआ, कोई ब्लॉकेट नहीं है। कभी महिलाओं को गैस के 3-3 हजार रुपये नहीं देने पड़ते, कहीं पेट्रोल 500 रुपये से नहीं खरीदना पड़ता है। अगर विल है, इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। इसका ये जीता जागता उदाहरण नॉर्थ ईस्ट की शांति है। मित्रों, जब हेमंत जी ने कहा कि 21 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर बन जाएंगे, मैं मानता हूं आसाम के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में बस्ती के आबादी के अनुपात में शायद सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज यहीं पर होंगे, आबादी के अनुपात। और जब एक मेडिकल कॉलेज बनता है तो सिर्फ मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ती है, बच्चे डॉक्टर बनेंगे इतना नहीं है। मेडिकल साइंस के 14 से 14 विभाग की तज्ञता की सारवार उस मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब जनता को मिलना शुरू होती है। इसका फायदा वो जिले के गरीब से गरीब व्यक्ति को होता है। और अब तो मोदी जी ने और आसाम ने, मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना तक का एक कार्ड दे दिया है। हर साल आपको 5 लाख तक का नहीं देना है। और जो वो रेंज में नहीं आते थे, उन्होंने अटल अमृत योजना बनाई है आसाम सरकार।